Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's daily vocabulary phrase is take for granted. It was a request by Nayaz Ahmed and Nayaz, here's your lesson. First I will explain take for granted in English, then I will explain it in Urdu or Hindi. So stay with me. Take for granted has two different meanings. One is to fail to appreciate the value of someone or something. Second is to assume something as true. The first meaning, to fail to appreciate the value of someone or something. When we fail to appreciate the value of a person, it means we are taking that person for granted. And when we fail to appreciate the value of a thing, it means we're taking that thing for granted. Take the example of our parents. They are great blessing in our life from God, but most of the time we don't value them as much as they deserve. We don't give them enough time, we don't give them enough respect, and when God forbid they leave us, then we realize their true value. It means we took them for granted. Similarly, take the example of water. We have an easy access to water. We just open the tap and we have it. That's why most of the time we waste water. But ask them who have to walk miles and miles away to fetch even a pot of our water. It means we take water for granted. जो पहला मतलब है टू फेल टू एप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ समवन और समथिंग, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान की जो असल अहमियत है, असल उसकी जो वैल्यू है, अगर हम उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस इंसान को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ की जो असल अहमियत है उसको अगर हम एप्रिशिएट नहीं करते, उसकी वैल्यू को हम एप्रिशिएट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारी ज़िंदगी में एक ग्रेट ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें उनकी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, हम उन्हें इतना टाइम नहीं देते हैं, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। और जब खुदा ना ख़्वास्ता अगर वो हमें छोड़ जाते हैं, तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि उनकी असल अहमियत क्या थी, उनकी असल वैल्यू क्या थी। इसका मतलब है कि हमने अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लिया। इसी तरह से आप चीज़ में एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं पानी की। ठीक है, हमें चूँकि ईज़िली पानी अवेलेबल है, हम जस्ट टूटी खोलते हैं और उसमें से पानी जो है हमें मिल जाता है, ठीक है? तो इस वजह से हम पानी की जो वैल्यू है, उसकी जो अहमियत है, उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं और हम अक्सर पानी को ज़ाया करते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछें जिन्हें कि पानी ईज़िली अवेलेबल नहीं है, उन्हें मतलब माइल्स एंड माइल्स अवे जो है वो चलना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है और वो एक थोड़ा-सा जो पॉट में वाटर पानी जो है वो लेकर आते हैं। तो उन्हें पता है कि असल वैल्यू पानी की क्या है। तो इसका मतलब है कि हम पानी को भी अपनी ज़िंदगी में टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। The second meaning, to assume something as true. When we assume a certain situation will remain the same and it will never change, or you assume a person's behavior will remain the same, it will never change. It means you are taking that situation for granted. For example, you are arranging a get together with your friends and you assume that your friend will show up, you don't need to invite him. And he doesn't come. And when you ask him, he says, "You didn't invite me, that's why I didn't come." And then you realize that you should have invited. It means you took the situation for granted. Similarly, when we are in last semester of our university, we just assume that when I'll go out, I'll drop my CV in some reputable organization and I'll get the job. But reality doesn't work this way. And then you realize that you assume something as true which is not. It means you took the situation for granted. जो दूसरा मतलब है इसका, टू अज्यूम समथिंग एज ट्रू, इट मीन्स कि आप किसी सिचुएशन को या किसी इंसान के बिहेवियर को सोचते हैं कि ये इस तरह से ही होगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये कभी भी ज़िंदगी में चेंज नहीं होगा, मतलब ये सिचुएशन ऐसे रहेगी या वो जो इंसान है वो इसी तरह से बिहेव करेगा। तो इसका मतलब है कि आप जस्ट अज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, आपने उसको तहकीक नहीं की कि क्या वाक़ई में ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी या वो इंसान जो है वो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो इट मीन्स कि आप सिचुएशन को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से हो सकती है कि जैसे अगर आप अपने घर में कोई गेट टुगेदर फ्रेंड्स की जो है वो अरेंज कर रहे हैं और उसमें आप अपने एक दोस्त को नहीं इनवाइट नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं कि वो तो आएगा ही क्योंकि वो तो मेरा दोस्त है और उसको पता है कि मैं गेट टुगेदर जो है वो अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है? लेकिन वो आपको दोस्त नहीं आता और जब आप उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि तुमने तो मुझे इनवाइट ही नहीं किया था। तो आपको तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने चीज़ों को जस्ट अज़्यूम कर लिया था, मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसको इनवाइट नहीं किया तो वो नहीं आया। इट मीन्स कि मैंने सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने खुद से ही बस चीज़ों को अज़्यूम कर लिया कि ये ऐसे ही होगा, जबकि हकीकत में ऐसे नहीं होता है। सिमिलरली जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में जब होते हैं, जब हमारा लास्ट सेमेस्टर होता है, तो हम उस वक़्त अपने ज़हन में यही बात बैठाकर बैठे होते हैं कि बस मैं बाहर जाऊँगा और मैं कुछ रिप्यूटेबल ऑर्गनाइज़ेशंस में अपना सीवी ड्रॉप करूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी।
लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो इसका मतलब है कि आपने जस्ट एक सिचुएशन को अज्यूम किया कि हकीकत में ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इट मीन्स कि वो जो आपने सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड लिया है। आई होप कि आपको फॉर ग्रांटेड का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is I took my mother for granted and realized when she passed away कि मैंने अपनी माँ को for granted लिया, मतलब उनकी ज़िंदगी में उनकी वैल्यू को अप्रिशिएट नहीं किया, और जब वो चली गई तो तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। Our second example is don't take your time for granted, it will never come back कि अपने टाइम को for granted नहीं लो, क्योंकि ये दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा। तो जो आज वक्त है उसको आज ही वैल्यू करो उसके। A third example is I took for granted that she would invite me, but I was wrong कि मैंने इस चीज़ को अज्यूम कर लिया था कि वो मुझे जो है वो इनवाइट करेगी, लेकिन मैं गलत था, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो आपने एक सिचुएशन को जस्ट अज्यूम कर लिया कि ये ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये जो हमने सेकंड मीनिंग पढ़ा था, ये उस मीनिंग में है। Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.